Hello students, welcome to online classes of Neeraj Bajpayee International School. I am your physics teacher Shreya Vaishnav, and today we are going to continue with our chapter 10 light. Till now we have studied about the image formation of object by a concave mirror, and we have gone through all the 6 positions. So by this table in front of you, you can recall how according to the position of object, position of image, size of image and nature of image was formed. Here you can see the 6 position of objects are there. First, between the pole and the focus. We have gone through this individually. We have gone through all these positions individually and we have seen where the position of object was, and according to that what was the position of image, what was the size of image, what was the nature of image. So here when the object was between the pole and focus, the image was formed behind the mirror. It was magnified and its nature was virtual and erect. That was our first position. Second position was at focus. The image was formed at infinity. The size of image was highly magnified and the nature of image was real and inverted. The third position of object was between focus and center of curvature. The position of image in that was beyond center of curvature. The size of image was magnified and the nature of image was real and inverted. The fourth position of object was at center of curvature and the position of image in that was at center of curvature. Size of image was equal to the object and nature of image was real and inverted. The fifth position was the object beyond center of curvature, in which you also wrote as between center of curvature and infinity. So the position of image was between focus and center of curvature. The size of image was diminished, or you can say smaller than the object. The nature of image was real and inverted. The last position, the sixth position of object was at infinity, and the position of image at that position of object was at focus. The size was highly diminished, means very smaller than the object, and nature of image was again real and inverted. So here in this table, at one table only, you can go through, you can recall all those 6 positions of object and corresponding position of image, size of image and nature of image. But individual understanding is also important. That's why we have gone through all those individual diagrams, ray diagrams and explanations of it. But now we move forward. Now we have understood all these things. Now we move forward to the numerical part of it, and before going for numerical part of it, we need to know what's the formula behind it. So that's why the next topic is mirror formula for spherical mirror. Mirror formula. So this formula is there, in which you will understand that how you are going to solve the numericals. So in mirror formula, you have to understand some small terms regarding it, like what are the denotion of small things in which through which the formula will be made. So let's see. First thing will be where the object is at. Let object is at somewhere here, and its distance from pole to the object, let that object be AB. So let that distance between the pole and object be u. We have to denote that distance of object from the pole. We are going to take pole as our reference point. So that distance will be denoted by u. What distance? The distance between the pole and the object. Then the next thing will be image. Let this is the image. And the distance between pole
and the image, the distance between pole and the image, let the image be A dash B dash, the distance between pole and the image will be noted by V. So two things have been done. First, the distance between pole and the object will denote it by U. The distance between pole and the image will denote it by V. And the last thing which we have already done earlier is focal length, means the distance between pole and the focus. The distance between pole and the focus of a spherical mirror is called focal length, and we will denote it by small f, as we have already done earlier. So three things are here. Three things are here. What are those? The distance between pole and the object, wherever it may be, you will denote it by U. The distance between pole and the image will denote it by V, and the distance between pole and the focus will denote it by F. These three things are there. So according to that, what will be the formula? Let us see. Mirror formula. Here we have already gone. Distance between the distance of object from the pole of mirror, U. The distance of image from the pole of mirror, V. Yes. The distance of focus from the pole of mirror or focal length is F. So now the mirror formula is 1 upon the object distance plus 1 upon the image distance is equal to 1 upon focal length. That is 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. Is it easy to remember? Yes, you can remember it very easily. 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. But here you have to remember, you have to understand that U is the object distance from the pole, V is the image distance from the pole, and F is the focal length, or you can say focus distance from the pole. So try to memorize it, because this is going to come again and again. So what is the mirror formula? Mirror formula is 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. Repeat it and you will remember it. 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. This is mirror formula, and this will be helpful to solve the numerical. But one more small formula is there related to the spherical mirror in that only, which is known as linear magnification formula. As we already know that the object is there, its size is something, but its image is either smaller than that or more than that. या तो image बड़ा बन रहा है या तो उससे छोटा बन रहा है. किससे छोटा? Object से छोटा. So in that, the linear magnification formula becomes the ratio of height of image to the height of object is known as linear magnification. What is that? The ratio of height of image to the height of object is called linear magnification. As well as it is also equal to the ratio of image distance to the object distance from the pole with a minus sign. When you will go through the formula, it will be more easy, because these things are to make you understand. So what will be the formula? But linear magnification is denoted by M. So that's why M is equal to height of image upon height of object. Height of image upon height of object. By denoting it in a way of formula, it will become like M is equal to HI upon HO, means height of image, upon HO, height of object. We have denoted HI by height of image. We have denoted height of object by HO. And here we already know, here we have written, it is also equal to the ratio of image distance to the object distance upon U, but with a minus sign, means minus V upon U. So here our formula of linear magnification becomes M is equal to HI upon HO is equal to minus V upon U. It is also easy to remember. आसानी से याद हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं? M is equal to HI upon HO is equal to minus V upon U. Repeat it few times and you will remember. So two formula we have gone through. First was the mirror formula and second is linear magnification formula. Note it down in your notebooks, and now we'll move towards numerical questions. You must be thinking that we are going through so many theories. कितने सारी चीज को हम लोग लिख पढ़ रहे हैं. Numerical तो आई नहीं रहा physics में. No, numericals are there. Next thing is numericals. But before that, we have to understand
sign convection of spherical mirror. What the sign convection means? It means that what value we have to take as positive and what value we have to take as negative. हाँ, आईने के सामने मीन्स अपना मिरर के सामने जो चीज हो रही है वो उसकी वैल्यू मिरर के पीछे जो डिस्टेंस आ रहा है या हाइट आ रहा है उसकी वैल्यू से अपोजिट होगी. हाँ, इसीलिए हमको एक साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा. कन्वेंशन मतलब हमने अपनी सहूलियत के लिए ये साइन लेंगे क्या, पॉजिटिव नेगेटिव का. तो देखते हैं क्या होता है. All distance are measured from the pole of mirror as origin. हम लोग पोल मिरर का जो पोल है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं उसको ओरिजिन मानेंगे. ओरिजिन मतलब रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, वहां से हम लोग डिस्टेंस नापना चालू करेंगे. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर. हमेशा हम लोग जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा ए बी उसको मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे. मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे. अभी एक डायग्राम आएगा उसमें आपको समझ में आएगा. Distance measured in left side of pole of mirror is taken as negative. Yes, whatever distance we are going to take from the pole of mirror in the left side of the screen or left side of your notebook will be taken as negative. अभी देखेंगे एक न्यूमेरिकल में सब समझ में आ जाएगा. ये distance measured in the right side of the pole of mirror is taken positive. और मिरर के राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस होंगे जो उस तरफ बढ़ेंगे डिस्टेंस उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे. राइट साइड के जो आएंगे. फिफ्थ, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव लेंगे. और डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव. और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेंगे. देखिए डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं. साइन कन्वेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर ये रहेगा हमारा बेसिक रे डायग्राम, बेसिक डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक कॉन्केव मिरर का आर्क है जिसमें से एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक रफ सरफेस. फिर उसके बाद ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल. अब इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे. हमने क्या बोला पहले कि जितना भी डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड में होगा मींस इस तरफ होगा मिरर का पोल ये है और इस तरफ के जितने भी डिस्टेंस आएंगे उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव लेंगे. 5 सेंटीमीटर तो उसको -5 बना देंगे. क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया. और इस तरफ में जो डिस्टेंस आएगा उसे पॉजिटिव. इन द सेम ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव. जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो ए बी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता था. तो उसकी वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो +10 सेंटीमीटर हो जाएगा. मगर उसका इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, वो भी 10 सेंटीमीटर का है तो वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. देखेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझ में आएगा. मगर the last thing is always keep the object on the left side of the pole of the mirror. मतलब ये पोल है उसके इस तरफ ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई. Why? Because we are not going to put it here. हम यहाँ नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को. ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड है ही नहीं, यहाँ से तो रिफ्लेक्शन बनेगा ही नहीं. अपने ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे. यहाँ से चालू होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ से आएगी इंसिडेंट रे, इसीलिए लेफ्ट साइड में रहेगा उसका डिस्टेंस. ओके, लेट्स गो थ्रू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देन in our next part. Welcome back students to the part 2 of today's video. We understood and discussed about mirror formula and linear magnification formula. Now let's move forward to numerical questions, and here is the first question. Find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Here is the question. And as we have already discussed that to solve a numerical question, there is a approach, a technique
of solving it which involves 4 points. 4 पॉइंट्स होते हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के. पहला क्या होता है, गिवन, जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखो. सेकंड, टू फाइंड, जो क्वेश्चन में पूछा है उसे लिखो. वी नो डैट, जो आप जानते हैं जिसमें सॉल्व करेंगे वो लिखो. और आखिरी है आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दैट वे. Let's move to the solution. First part is given. Here in this question, the first thing which is written is object of size 1 centimeter. 1 centimeter size. What is this size? Actually, it is height. Size, height. It is the height of object. So height of object is denoted by HO, which is given 1 centimeter. But we have to put positive sign in front of it. Why? Because according to our sign convention, हमारे sign के assumption के हिसाब से जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं. ऊपर के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव लेंगे. यस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर. दूसरी चीज जो दी हुई है वो है डिस्टेंस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर जब भी बोल रहा है मतलब पोल से नाप कर बता रहा है. पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी, 15 सेंटीमीटर की दूरी. हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं. देखिए हम उसके लिए क्या सोच के रखें, नेगेटिव लगाएंगे उसके सामने. इसीलिए ऑब्जेक्ट की दूरी को हम, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल से किसे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं. u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. और जो तीसरी चीज दी हुई है वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोलता है. तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. वाई माइनस? पोल से फोकस की दूरी को ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं. वो कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में है. इसीलिए उसे नेगेटिव लेंगे. यानी कि f जो कि हमारा फोकल लेंथ है इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. क्या और कुछ दिया है? नहीं, ये तीन चीजें दी हुई है. और पूछता क्या है, पूछ रहा है टू फाइंड. सबसे पहले बताओ साइज, या फिर आप बोल लो पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v की वैल्यू बताओ. v एक्चुअली होता क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज का डिस्टेंस पोल से. तो वही तो हुआ पोजीशन ऑफ इमेज. v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. दूसरी चीज पूछा है साइज, बोल लो साइज. हाइट ऑफ इमेज, इमेज का साइज पूछा है, यानी इमेज की हाइट पूछा है. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और तीसरी चीज बोला है नेचर. तो वो हम आंसर के समय बताएंगे कि उसका कैसा स्वभाव है, कैसा नेचर, किस टाइप का इमेज बन रहा है. ये चीजें बताई हुई है, ये दी हुई है, ये पूछी हुई है. और अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं फॉर्मूला. और वो फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला. बोल रहा था 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f. इसमें से हमें u की वैल्यू मालूम है क्या? हाँ मालूम है. v की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम. f की वैल्यू मालूम है? हाँ मालूम है. तो सिर्फ एक वेरिएबल है, क्या सॉल्व हो जाएगा? हाँ हो जाएगा. देखिए u की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, v निकल सकता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कैसे होगा, हम सारी चीजें की वैल्यू पुट कर देते हैं. देखिए 1/u यानी 1/-15. u की वैल्यू -15 थी, ब्रैकेट में लिख दिए. d की वैल्यू नहीं मालूम थी. f की वैल्यू 1/f, तो f की वैल्यू -10 रख दिए. -10. आगे सॉल्व करते हैं. क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं. ब्रैकेट खोले तो 1/15 माइनस बाहर आ गया. 1/b वैसे ही रहा. 1/10 था और ये -10 था, वो माइनस बाहर आ गया, तो बन गया -1/10. अब ये 1/v को यहाँ अकेला LHS लेफ्ट हैंड साइड में अकेला छोड़ते हैं और -1/15 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं. ये नेगेटिव साइन वाला है, इधर जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15. आगे बढ़ते हैं. 1/v इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप इसका एलसीएम निकाले, फिर लो लंबा तरीका. लंबा तरीका से शॉर्टकट तरीका क्या है, नया डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए एक डिनोमिनेटर बनाना है. तो 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो. क्या बन गया, 150. नया डिनोमिनेटर बन गया. और 15 को इस 1 से -1 हुए, हाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -15. और 10 को +1 से मल्टीप्लाई कर दो +10. हम क्या किए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए तो नया डिनोमिनेटर बन गया. और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर पता करने के लिए, और बीच में लगा दिए जो साइन है. तो 15 -1 -15, 10 × +1 +10.
1/v इज इक्वल टू -15 + 10/150। ये ऊपर को सॉल्व करें तो देखिए -15 + 10 -5 हुआ, 1/v इज इक्वल टू -5/150। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/30। कैसे? 15 5 1 जा 5 और ये गया 3 जा और 0 30, तो -1/30। ये 1/v की वैल्यू है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर दो, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट हाइट ऑफ इमेज। तो हमें फॉर्मूला मालूम है मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u। याद रखना इसे, और इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। इसमें से क्या क्या चीज दी हुई है और क्या नहीं है। तो देखिए इसमें से हम लोग ये m वाली चीज को हटा देते हैं क्योंकि हमारे अभी काम की नहीं, ना पूछा है, मैग्निफिकेशन कभी पूछेगा तब बताएंगे। तो हमारे लिए hi/ho इज इक्वल टू -v/u अभी काम का है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमें ho की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू पता कर लिए अभी, और u की वैल्यू पहले से पता है। hi बस नहीं पता है, जो कि हाइट ऑफ इमेज है, उसको हम लोग अभी पता करेंगे। तो एक वेरिएबल है, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। hi की वैल्यू नहीं मालूम, ho की वैल्यू +1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लिए +1। v की वैल्यू ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस वो भी आया था हमारा -30, अभी हम सॉल्व करके लाए थे -30, और u की वैल्यू -15 क्वेश्चन में दी हुई है। ये माइनस साइन को मत भूलना, यहाँ पे रहेगा जरूर। आगे सॉल्व करते हैं, hi/+1। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस बन गया प्लस, तो नीचे का माइनस वैसे ही रहेगा। फिर नीचे का भी ब्रैकेट खोले तो ये माइनस ऊपर गया, और ये +1 हम लोग यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में लाए तो मल्टीप्लाई हो गया। तो बचा hi इज इक्वल टू -30/15 इंटू 1, -30/15। ये सॉल्व हो सकता है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो बचा hi इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई हुआ तो -2 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग कि आंसर क्या बनेगा। तो आंसर बनता है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज बताएंगे। पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पर मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? मैंने माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहाँ आगे लिख दिया है लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर, जिसका मतलब ही हमने क्या लिखा था, माइनस होगा। तो हम लोग माइनस से डिराइव करेंगे, हम लोग माइनस साइन का जो आंसर आया था उससे समझेंगे कि वो असल में लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑफ मिरर है। इतना 30 सेंटीमीटर पोजीशन है ऑफ इमेज। दूसरी चीज, साइज ऑफ इमेज पूछा था, तो साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखो मैंने माइनस साइन फिर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि उसी के लिए मैंने लिख दिया बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। हाइट या साइज इमेज की 2 सेंटीमीटर की है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर। तीसरी चीज जिसको समझने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा साइन को, हम साइन कन्वेक्शन इसीलिए जरूरी है। सबसे पहले नेचर के बारे में जानते हैं, तो नेचर के बारे में बताया था कि वर्चुअल होगा कि रियल होगा, और इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा। तो उसके लिए देखिए, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा कि रियल होगा, हमें इससे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है। अगर वो इमेज के सामने बन रहा है और मिरर के सामने बन रहा है वो रियल होगा। तो मिरर के सामने बनने का मतलब लेफ्ट साइड में होगा, तो हमने लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि रियल है। लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर मतलब मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इसीलिए रियल हुआ। अगर पोजीशन ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वो रियल होगा। ठीक है, रियल हो गया। अब दूसरी चीज बोला था, नेचर में हमें बताना पड़ता है कि वो इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इमेज। तो हमारा आंसर बन गया नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी आपको शायद लग रहा हो इतना सारा चीज हो रहा है, बट नो, एज सुन एज यू विल प्रैक्टिस इट यू विल कम टू नो दैट इट इज वेरी इजी। यहाँ पर हम बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस कुछ चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फ्रैक्शंस टाइप के। और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर का, उसको रखा गया है 16 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव मिरर के पोल से, लिखा नहीं मगर पोल से ही नापते हैं हम, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, जो एक रियल इमेज बनाता है 3 सेंटीमीटर हाइट का। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, थोड़ा घुमा कर पूछा है क्वेश्चन, रियल इमेज बनाता है 3 सेंटीमीटर हाइट का मतलब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होते हैं, उल्टे ही होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होते हैं। हाँ, तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे क्या होगा। तो बताओ कि फोकल लेंथ कितना है बोल रहा है, और पोजीशन ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू बताओ। चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। गिवन सबसे पहले क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, प्लस में लूंगा, हाँ प्लस में लूंगा, देखे थे अभी हमने, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है ऑब्जेक्ट। u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। -16 क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तीसरी चीज, हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया है, और वो बोला है 3 सेंटीमीटर, मगर मैं वहां पे लगाऊंगा -3, क्योंकि रियल इमेज बोला है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनता है। आप अपने चार्ट्स में देख लो, चार्ट में हम लोग जो बनाए, एक टेबल बनाया है, जहां पे रियल आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं एक साथ। हाँ, इसका मतलब रियल बोल दिया है, मतलब इन्वर्टेड भी होगा, और इन्वर्टेड में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस साइन लगाते हैं, ये कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ेगा यहाँ। और फिर क्या पूछा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो पूछा है कि फोकल लेंथ कितना है, और फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, यानी कहां पर बन रहा है इमेज, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो वी नोट में देखते हैं कि क्या कहां से चालू करें। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को v भी नहीं मालूम और f भी नहीं मालूम, दोनों चीज नहीं मालूम, तो कोई इन दोनों में से सिर्फ एक चीज को पता कर लेते तो अगला भी सॉल्यूशन से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है वो, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन u, जिसमें से m वाला चीज अभी पूछा नहीं है मैग्निफिकेशन, इसलिए HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन u, जिसमें से देखिए HI की वैल्यू मालूम है, HO की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू नहीं मालूम, u की वैल्यू मालूम है, यानी कि v की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू। HI की वैल्यू दिया था -3 सेंटीमीटर, पीछे देखना पीछे वाले स्लाइड में नोट्स में, और HO की वैल्यू दिया है +2 सेंटीमीटर, +2 लिख दिए, और माइनस v की वैल्यू नहीं मालूम, और u की वैल्यू दिया है -16 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व करना बचा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोले तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन पॉजिटिव हो गया और हट गया, और ये माइनस साइन रहा और पॉजिटिव साइन भी हट गया। अब हम लोग v को अकेला छोड़ देंगे यहाँ पे, और इस 16 को इस तरफ ले आते हैं, तो v की वैल्यू पता चल जाएगी। 16 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो -3 × 16/2, ठीक। आगे 2 1 जा एंड 16 को डिवाइड किए 2 से, तो 8 जा, तो -3 × 8, 8 जा 24, v की वैल्यू आई, माइनस साइन मत भूलना, -24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब पता करना है, v तो पता चल गया, फोकल लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट। लेट्स मूव टू नाउ मिरर फॉर्मूला, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें से हमें देखिए क्या चीज की वैल्यू मालूम है, हमें u की वैल्यू मालूम है -16 जो क्वेश्चन में दिया था, v की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है -24, f की वैल्यू नहीं मालूम, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोले तो माइनस साइन ऊपर आया, -1/16, ये माइनस प्लस माइनस, -1/24 इज इक्वल टू 1/f। अब सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्व करने का तरीका दो तरीके से हो सकते हैं, मुझे आसान लगता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर मतलब नया डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर आएगा 16 × 24 384, आसान, 16 × 24 384, और फिर 24 × -1 -24, 16 × -1 -16, वरना फिर आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के फिर उसको पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर उसके न्यूमरेटर से करेंगे। आई थिंक इट इज हार्ड, बट दोज हु आर कंफर्टेबल इन दैट
do that in that way only, answer will come same, no problem. ओके, तो मैंने क्या किया, 16 इंटू 24 384 आ गया, और मैंने फिर 24 इंटू -1 क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया -24, 16 इंटू -1 -16 इज इक्वल टू 1/f। अब मैं ये -24 -16 को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे तो 40 मिला, -40 मिला, इज इक्वल टू -40/384 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की वैल्यू -40/384 है, रेसिप्रोकल f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 384/-40। इसको डिवाइड करके देखना है, इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आता है जो कि है f इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस साइन रहेगा वहां पे 9.6 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके देखिएगा 9.6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी आ गया, यानी कि दोनों जो चीजें पूछी थी वी हैव कैलकुलेटेड। व्हाट आर दोस थिंग्स, विल राइट इन द आंसर। पहला होगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 9.6 सेंटीमीटर। 9 आप बोले कि नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो उसको डिस्क्राइब करने की उतनी जरूरत नहीं, वो माइनस साइन से हमको बता देगा कि वो कॉन्केव मिरर है। और दूसरी चीज है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v इज 24 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आगे लिख दिया इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर, लेफ्ट साइड की चीजें नेगेटिव होंगी। ये हमारा आंसर होगा, इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। हम उसके माइनस प्लस को भी डिस्क्राइब करेंगे, हम पहले भी ऐसे ही करते थे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे। नाउ सी यू हैव अंडरस्टूड 2 न्यूमेरिकल्स as well as we'll solve more questions but you need to practice in it। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आज हमने क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा मिरर फॉर्मूला। क्या था मिरर फॉर्मूला, 1/u plus 1/v is equal to 1/f। फिर देखे लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, क्या था वो, m is equal to hi/ho is equal to -v/u। फिर उसके बाद हमने देखा साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर्मूला, हमने देखा नेगेटिव किसको लेना है, पॉजिटिव किसको लेना है। ये थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको याद रखिए, बहुत आसान है। कैसे आसान है इसको आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं मैथ्स में कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो इस तरफ में हम लोग जो y एक्सिस होता था उसको पॉजिटिव लेते थे, हाँ पॉजिटिव लेते थे, y को हम लोग यहाँ से पॉजिटिव लेते थे यहाँ पे यूं, और नीचे में नेगेटिव लेते थे, है ना। और x एक्सिस में हम लोग राइट साइड में पॉजिटिव लेते थे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते थे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रह सकता है, वो हमारा साइन कन्वेंशन फॉर द फॉर्मूला जो आज हम लोग समझे। और फिर उसके बाद हमने जाना कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इवेंचुअली हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, उसकी थ्योरी के साथ में हमें न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें आज हमने पढ़े। तो आप लोग को मैं 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसे जरूर ट्राई करना, गलत हो या सही हो। अगर गलती होगी तो अगले में आप उसको चेक कर पाएंगे, क्योंकि अगले क्लास के में वीडियो में मैं इसका आंसर भी जरूर दूंगा। बाकी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बता रहा है नाउ सॉल्व दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Second है, when an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. Calculate the focal length of the mirror. I hope you understood about today's numerical and formulas. Try to solve this question. Stay safe and take care.